Hello friends, it's good to see you all again. Today we are here to discuss the 4 secret for a happy life. And आपको जान के खुशी होगी ये सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है. And the name of secret is try to sweat in peace. There is an old army saying which says the more you sweat in peace, the less you bleed in war. इसका कहने का मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो उस प्रैक्टिस को इतना ज्यादा टफ लेवल पे करो, जब रियल सिचुएशन आएगी ना वो आपकी नॉर्मल तरीके से ही निकल जाएगी. लेट मी टेक यू एन एग्जांपल. आई वाज इन अ 9th क्लास एंड हमारे स्कूल में एक क्रिकेट लीग हुआ. And me and my best friend Rahul got a chance to play cricket from our school. So what happened is, जब हमारा मैच हो रहा था दूसरे स्कूल के साथ, me and my friend are playing on the field, and at that time, the bowler is bowling at a real fast speed. You won't believe that while I was batting, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि ये बॉल कितनी तेज आ रही है और मेरे को कैसे बैट घुमाना है. I was surprised to see that fast ball, and me and my friend are not able to play well, and ultimately the result came, and the result is quite simple. You all know what will happen. Our team lose, our school lose. Me and my friend, we both are feeling sad. We both are feeling यार कुछ गलत हो गया आज हमसे, हम हार गए. We are feeling embarrassed. Then हमारे लोगों ने हमको बोला यार यू लूज टुडे, यू आर नॉट एबल टू प्ले वेल, एंड वी बोथ वर लाइक आई डोंट नो हाउ वी कैन प्ले दैट फास्ट बॉल, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी आर प्लेइंग अ फास्ट बॉल, बिकॉज व्हाइल वी आर प्रैक्टिसिंग वी प्ले नॉर्मल. माय फ्रेंड bowl me, I bat, I bowl him, he bat, so that was a normal situation for us. But while having a match with other school, वो लोग बड़ी तेज बॉल कर रहे थे और हम हार गए. फिर क्या हुआ, आई थॉट यार वी नीड टू डू समथिंग एल्स, वी नीड टू डू समथिंग सो दैट द नेक्स्ट टाइम द मैच विल केम आवर टीम विल विन. एंड माय फ्रेंड वाज लाइक यू आर सेइंग राइट, बट एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट टू डू. सो व्हाट आई टोल्ड हिम इज यार कुछ करते हैं जिससे अगली बार हमें जीत मिले. एंड मेरा दोस्त बोलता है लेकिन हम करेंगे क्या. एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो राइट नाउ, but I know that we need to do something. Then after a week, I got an idea in my mind. I went to my brother, my friend basically. So he's like a brother to me. So I went to my friend and I said him, "Yo, can we practice with that white ball which has some holes in it?" And my friend was like, "Are you suggesting to play with a golf ball?" And I was like, "Yes, I want to play with a golf ball." So what we thought is we will play cricket by a white ball, the white golf ball. Because golf ball की एक खासियत होती है, खासियत जो उसकी है वो ये है कि a 8 to 10 year child can bowl that at a really fast speed. तो उस बॉल को बड़ी तेजी से फेंका जा सकता है. So if we practice by that ball, we will be able to know that when we have to play our bat. क्योंकि वो बैटिंग करना उस वक्त जब तेज बॉल आ रही थी हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें किस डायरेक्शन में मारना है, हमें बैट कितनी देर में अड़ाना है. हम जब तक बैट अड़ा रहे थे ना वो बॉल इधर से उधर निकल जा रही थी. सो फाइनली हमने क्या किया, इन मॉर्निंग वी आर प्रैक्टिसिंग विद लेदर बॉल एंड इन इवनिंग फॉर अराउंड 1 to 2 hours वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद दैट गोल्फ बॉल. एंड आफ्टर लाइक 9 to 10 month व्हेन वी वर इन द 10th क्लास, एट दैट टाइम हमारे स्कूल ने दोबारा से ऑर्गेनाइज किया एक मैच. And we started having a match with other schools. So initial matches we won, and then we faced the same school again the next year. And what happened, you know? Our team won. I got 78 runs, and my friend got 128 not out. And that was really fun for us. We won that match. I still remember the feeling. मैं और मेरा दोस्त इतना खुश थे एंड वी आर फीलिंग लाइक यस वी वॉन्ट टुडे, हमने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में. एंड यू नो द रीजन ऑफ अचीविंग इट, बिकॉज हमने मेहनत इतनी ज्यादा करी, हमने प्रैक्टिस को इतना हार्ड बना दिया, द रियल गेम बिकम फन फॉर अस. It feels like
when the other school is bowling to us, we feel that ball is coming at a very low speed to us because of practice at a hard speed. The same rule I am applying in my life right now. As I am being a cost accountant, I am teaching income tax. So this rule I follow. And the rule is simple. जब मैं अपने बच्चों को क्वेश्चंस कराता हूँ ना, या टॉपिक समझाता हूँ, या टेस्ट देता हूँ, तो उनको इतना डीप लेवल पे जाके मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि जब उनके एग्जाम आते हैं ना, उनको पेपर में ऐसा फील आता है, या सर मेरे को तो सारे क्वेश्चन आते थे, सर आई वॉज कंफ्यूज्ड कि पार्ट ए करूँ कि पार्ट बी करूँ, दोनों के अंदर चॉइस थी, एंड आई नो बोथ. सो दैट इज व्हाट हैपन व्हेन यू विल प्रैक्टिस हार्ड, व्हेन यू स्वेट इन पीस. अपना जितना पसीना बहाना है ना, प्रैक्टिस के टाइम पर बहा दो. जब रियल सिचुएशन आएगी वो ऐसे निकल जाएगी, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं फेस होगी आपको अपनी लाइफ के अंदर. तो एक जिंदगी जीने का बड़ा सिंपल रीजन मैंने आपको आज बताया कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, इतना हार्ड प्रैक्टिस करो, जितना पसीना निकाल सकते हो प्रैक्टिस में उतना पसीना निकालो, ताकि रियल सिचुएशन फन जैसी लगे आपको. दैट्स ऑल फॉर द डे. And I hope you have learned something new, and you have learned a new technique in your life through which you can have some success and you can be happy in your life. अगर आपको कुछ इसके रिगार्डिंग डीप कुछ पूछना है, या आप चाहते हैं मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, and I will be happy to make video according to your need. So that's all for the day. Goodbye. Have a nice day.